So let's start with this exercise 4.1. So look at this question number 1 here. In this question, evaluate the determinant in exercise 1 and 2. Exercise 1 and 2 means question 1 and question 2. Look at this first one. So we have already discussed the concept of this chapter in the previous class. So let us apply that. तो कैसे एक्सपेंड करते हैं 2 into 2 को, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं. सो 2 into -1, फिर बीच में माइनस का साइन लगाते हैं. देन दिस -5 मल्टीप्लाइड विथ 4, -5 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, राइट. सो देन इट्स कम्स आउट टू बी -2 + 20, इट्स कम्स आउट टू बी 18. सो 18 इज द आंसर इन दिस केस, राइट. लुक एट दिस सेकंड वन. सेकंड का फर्स्ट पार्ट, दिस cos मल्टीप्लाइड विथ cos, so it become cos into cos will become cos square theta, राइट. माइनस का साइन लगाते हैं बीच में. देन दिस साइन मल्टीप्लाइड विद माइनस साइन, इट बिकम माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो जो साइन स्क्वायर थीटा के साथ माइनस का साइन था उसने इसको प्लस कर दिया है. एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो 1 इज द आंसर इन दिस केस. नाउ लुक एट दिस सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए. सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 multiplied with x plus 1, right. Then put the minus sign and then multiply this x plus 1 with this minus x minus 1. So x plus 1 multiplied with x minus 1, right. And if you look at this, one thing is common in these terms. इसमें common आ रहा है. So what is the common term here? देखो आप x plus 1 is common from here and here. So take x plus 1 common. What is remaining inside the bracket? Bracket में बचेगा x square माइनस एक्स प्लस 1 बचेगा. देन माइनस और ये बचेगा x माइनस 1. तो माइनस एक्स प्लस 1 इसको लिख सकते हैं. कुछ कैंसल्स हो रही हैं टर्म्स, कुछ भी कैंसल तो नहीं हो रहा है. सो देन इट कैन बी रिटन एज x प्लस 1 and it can be written as x square minus 2x plus 2. You can leave it here. So this is the answer, or you can open the bracket also. After opening the bracket, you will get the terms, you will get the expression. That's also right. Right. Now let's move to the next question. Look at this question number 3. If A is given this, so that 2A determinant is equal to 4A determinant. So we have to show it. So हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है. एक A के determinant चाहिए, एक 2A हमें फाइंड आउट करना है और 2A का determinant फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट द determinant of A. So what is the determinant of A is, it's 1 2 4 2, right. So we know how to solve it. इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2 आ जाएगा. फिर माइनस का साइन लगाते हैं बीच में. And then this 4 multiplied with 2, 4 2s are 8. So it comes out to be minus of 6. So determinant of A is -6, right. So if you find right hand side, अगर इसमें right hand side आप find करना चाहेंगे तो right hand side is 4A determinant. So 4A determinant is -6. So it comes out to be minus of 24. तो A का determinant आ गया है, right hand side आ गई है -24. अब हमें फाइंड करनी है इसकी लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे 2A लिखा हुआ है. तो पहले 2A फाइंड करते हैं. 2A, so 2A, what is A matrix here? 1 2 4 2, right. Then it's equal to, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी नो हाउ टू मल्टीप्लाइड इट्स मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट. तो मैट्रिक्स में जो बाहर नंबर होता है वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है. इट बिकम 8 and 4, it become like this, right. So what is RHS? RHS तो हमने फाइंड कर दिया. what is LHS? LHS है 2A का determinant. So 2A का determinant का मतलब है 2A हमने फाइंड कर लिया, it's 2 4 8 4 का determinant. So let us solve it. सोल्व करना में आता है. दिस 2 is multiplied with 4, तो 2 4s are 8 माइनस, and 8 multiplied with 4 32. So 32, 8 minus 32 equal to minus of 24. So if you look at this, LHS and RHS are equal. So therefore we can say that therefore LHS is equal to RHS, hence verified, right. I hope this question is clear to you. Look at this question number 4. If A is equal to this 3 into 3 matrices, so that 3A and this thing is equal to this, right. So first of all, if you look at the right hand side, left hand side अगर मैं लूँ यहाँ पे, so 3 को मुझे A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 multiplied with A. So 3 multiplied with A like this, 1 0 1 0 1 2 0 0 4, right.
So matrix multiplication है, this 3 is multiplied with each and every element inside the matrix. So it become 303, 036, 008. तो ये आ गया 3a. अब हमें LHS फाइंड करते हैं. LHS इज द 3a डिटर्मिनेंट. 3a का डिटर्मिनेंट है, तो 3a पहले फाइंड कर लिया मैंने. अब इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो आई हैव डन अ मिस्टेक हियर. It's not 8, it's 12, right? So now let us take the determinant here. 036, 0012. अब इसको आपको एक्सपेंड करना है. So now this is the main thing in this question, to expand it. So let me explain it along row 1. Row 1 के along इसको expand करता हूं. Okay, let me explain this. This is row 1. ये row 1 है. Okay, तो जो साइन आता है एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट के अंदर, लेट मी राइट दैट साइंस हियर. ये होता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस. सो दिस इज द साइन फॉर द डिटरमिनेंट. एलिमेंट्स के साइन होते हैं जो हम लोग -1 पावर i प्लस जे वी हैव रिटन व्हेन वी वर डिस्कसिंग द कंसेप्ट, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले प्लस आएगा एंड आई राइट 3. ये एलिमेंट लेने हैं, दिस 3 रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 3 0 3. सो लेट मी राइट दैट एलिमेंट हियर. 3 प्लस साइन के साथ, माइनस, ये प्लस साइन के साथ, माइनस 0 एंड प्लस अगेन 3 प्लस के साथ ये 3, राइट? अब यहाँ पे 2 into 2 डिटरमिनेंट बनाएंगे. सो लेट अस मेक अ 2 into 2 डिटरमिनेंट इसको एक्सपेंड करने के लिए. तो ये प्रोसीजर होता है एक्सपेंशन का. वी हैव डिस्कस इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास हाउ टू एक्सपेंड दिस 3 into 3 डिटरमिनेंट, राइट? सो अब इसको एक बार मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं. जैसे 3 लिखा हुआ मैंने ये वाला एलिमेंट, तो आप क्या करेंगे, इसको हाइड करेंगे. सो व्हाट इज द एलिमेंट हियर, 3 6 0 12. तो हमारे एलिमेंट बचेंगे यहाँ पे 3 6 0 12, राइट? इसके अंदर क्या आएंगे, 0 के अंदर एलिमेंट आएंगे 0 6 0 12. कैसे आया मैं बता देता हूं इसको एक बार. मैंने इनको हाइड किया है. देखो 0 वाला एलिमेंट ये था, तो इसकी रो को और इसके कॉलम को हाइड कर देंगे हम लोग. तो एलिमेंट दिखाई देना है 0 0 6 12, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट? सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. नाउ यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, एलिमेंट 3 के साथ एक्सपेंड, इसको 3 के साथ हम लोग लिखेंगे 0 3 0 0. हाउ आई राइट दिस, लुक एट दिस 3 इज हियर, हाइड दिस रो एंड हाइड दिस रो एंड कॉलम. सो एलिमेंट क्या दिखाई दिए, 0 3 0 0, राइट? सो नाउ एक्सपेंड इट, इसको एक्सपेंड कीजिए. इट्स 3, 2 into 2 का एक्सपेंशन, इसको इससे मल्टीप्लाई, 12 3 जा 36 माइनस, देन इसको इससे मल्टीप्लाई 0. और तो ये 0 का तो 0 ही आएगा, इसको एक्सपेंड करें तो मल्टीप्लाई 0 से होगा. और ये देखिए प्लस 3, इसको एक्सपेंड कीजिए, 0 into 0 0, फिर माइनस का साइन लगाते हैं एंड देन 0 into 3 0. So it becomes 0. The answer in this case is 3 into 36 is equal to 108. So LHS is equal to 108. So now let us find out RHS. अब वो लोग RHS find करते हैं. What is RHS? RHS is 27 determinant of A. So RHS is equal to 27 and determinant of A. So पहले determinant of A find करना पड़ेगा, फिर उसको 27 से multiply करना पड़ेगा. So what is determinant of A? So A का determinant क्या आएगा, A matrix is यहाँ पे लिख लेते हैं. A is given in the question 1 0 1. It's 1 0 1 0 1 2 0 0 4. So this is A given in the question. ठीक है. Now let us try to expand it. अब इसको expand करते हैं. So this expansion आपको clear हो जाएगा. Again I am using the row 1. Okay. Now this time I am not using row 1. मैंने यहाँ पे क्या देखा, इसमें मैंने ये एलिमेंट देखे, इसके 2 एलिमेंट 0 हैं इस कॉलम के. सो आई एम गोइंग टू एक्सपेंड इट अलोंग कॉलम 1, क्योंकि ये इजी होता है मेरे लिए, राइट? सो ये एलिमेंट 0 है, तो व्हाट कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए पहले 1 रखेंगे. साइन देख लीजिए, साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस. सो व्हाट इज द साइन फॉर दिस, इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस और इसके लिए प्लस. सो ये आएगा प्लस, देन फिर माइनस, ये जाएगा 0, देन माइनस अगेन 0.
तो इसको इसके डेटरमिनेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 इंटू 2 मैं नहीं लिख रहा हूं, ये इजी होता है। इसलिए अगर एलिमेंट 0 है जिसके ज्यादा तो उसको लिखते हैं। अब देखिए 1 को हाइड कीजिए, 1 के एलिमेंट क्या आएंगे, 1 2 0 4, राइट। सो हाउ आई फाइंड दिस, मैं आई हाइड दिस रो एंड कॉलम। सो 1 2 0 4 दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, राइट। देन एक्सपेंड इट, 27 1 है तो 4 1 जा 4 माइनस 2 इंटू 0 0, सो 27 इंटू 4 108. So RHS is also 108. So therefore LHS is equal to RHS in this case, hence proved. So look at the solution. I hope it's clear to you. So look at this question 5. In this question 5, evaluate the determinant. So we have to evaluate this determinant. If you किसके along expand करें, हम लोग इसको रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के along expand कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें चूज करना है किसके along expand करें। तो जो इजी वे होता है चूज करने का किसके along expand करें, नंबर ऑफ जीरोस देखिए किसमें ज्यादा है। तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस हैं ज्यादा है, इट्स इन रो 2 में ज्यादा है, राइट। सो एक्सपेंड अलोंग रो 2, उसी के अलोंग हम लोग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग रो 2, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन हाउ टू एक्सपेंड इट अलोंग रो 2। सो पहले पहला एलिमेंट लिखना है 0, ठीक है। इनके साइन होते हैं, ये साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। So we have discussed these signs in detail in the previous class. So look at this 0 0 1, तो 0 का साइन क्या होगा माइनस, यहाँ पे 1 का साइन क्या होगा, इस 0 का साइन होगा प्लस, और इस 1 माइनस 1 का साइन होगा माइनस। तो 0 के सामने प्लस, और फिर नेक्स्ट 0 आ रही है इसके सामने, सॉरी 0 के सामने माइनस होगा, ये माइनस साइन है, फिर प्लस होगा नेक्स्ट 0 के सामने प्लस 0, फिर माइनस 1 के सामने माइनस साइन होगा, दिस साइन अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स। तो माइनस साइन होगा किसके सामने, माइनस 1 के। तो जो जीरो वाले एलिमेंट है उनको लिखने की जरूरत नहीं होता 2 इंटू 2 डेटरमिनेंट, और माइनस 1 के लिए 2 इंटू 2 डेटरमिनेंट लिखेंगे, ठीक है। तो माइनस 1 के लिए 2 इंटू 2 डेटरमिनेंट लिखेंगे, तो माइनस 1 की रो को और माइनस 1 के कॉलम को हाइड कर देंगे। तो अब आपको जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं 3 माइनस 1 3 माइनस 5, तो उन एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 1 3 माइनस 5, राइट। सो नाउ आफ्टर सॉल्विंग इज 0 0 तो 0 हो जाएगा, इट बिकम 1, और 2 इंटू 2 को कैसे सोल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 15, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3, बीच में माइनस का साइन लगाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस 3, राइट। इट कम्स आउट टू बी माइनस 15 minus 3 comes out to be 12, so it comes out to be minus 12. So minus 12 is the answer in this case. So look at the second part here. In this second part किसके along इसको expand करें, कोई जीरो तो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, तो हम लोग इसको रो 1 के along expand कर लेते हैं, expand it along row 1. So let me explain how to expand it along row 1. So first of all write the element 3, जो रो 1 के एलिमेंट लिख लीजिए 3 माइनस 4 एंड 5, ठीक है। देन पुट द साइन, साइन पुट करेंगे इसके अकॉर्डिंग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो साइन देख लीजिए, साइन कैसे है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, तो इसके सामने प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब हमें 2 इंटू 2 डेटरमिनेंट बनाना है इसके साथ रखने के लिए, 2 इंटू 2 डेटरमिनेंट। वो कैसे ऑब्टेन्ड होता है, रोज एंड कॉलम्स को हाइड करके। तो देखिएगा 3 का जो आएगा 2 इंटू 2 डेटरमिनेंट वो आएगा -1 -2 3 एंड 1, कैसे आया, हाइड किया। तो देखो 3 ये था, 3 की रो को और 3 के कॉलम को हाइड कर दीजिए, तो जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं 1 -2 3 1 वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ थिंक दिस एलिमेंट्स। अब ये देखिए ये वाला एलिमेंट क्या आएगा यहाँ पे -4 के साथ, तो -4 की रो को और -4 के कॉलम को हाइड कर दीजिए, तो क्या दिखाई दे रहा है 1 2 -2 1। सो राइट द एलिमेंट हियर 1 2 -2 एंड 1। अब देखो 5 लिखा हुआ है, 5 की रो को और 5 के कॉलम को हाइड कर लीजिए, सो 1 1 2 3, सो इट्स 1 1 2 3। नाउ सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। तो 3 एज इट इज, इसका आंसर आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस लगाते हैं बीच में, एंड 3 2 जा 6, माइनस का 6 हो जाएगा +6, ये हो गया +4, 1 1 जा 1, माइनस का साइन, 2 2 जा 4, माइनस का 4 आएगा, इट्स बिकम +4। यहाँ पे 5 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2। देन सॉल्व इट, इट्स बिकम 7 3 जा 21, 4 5 जा 20,
and 3 minus 2 is 1, it's become 5. So answer in this case is 46. So 46 is the answer in this case. So this is how we expand 3 into 3 determinant, right? So now let's move to the next part. Look at this third part here. In the third part, let us expand it along row 1 से हमने देखा है, so let us expand it along row 3. रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं. इट हैव 1 0 ऑल्सो. रो 1 के अलोंग भी कर सकते हैं. तो रो 3 से सीखते हैं. एलिमेंट्स क्या होते हैं? साइन देखिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस साइंस. नाउ किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं? रो 3 के. तो एलिमेंट देखिए, -2, 3 एंड 0. सो राइट दैट एलिमेंट्स हियर, -2, 3 एंड 0. राइट. पुट द साइन इन फ्रंट ऑफ द एलिमेंट. साइन क्या होंगे? प्लस माइनस प्लस. तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस. अब हमें 2 into 2 डिटरमिनेंट बनाना है. इसके लिए नहीं बनाता हूं मैं, क्योंकि वो 0 से जो मल्टीप्लाई होगा इट ऑलवेज बिकम 0, राइट. अब देखो, -2 को हाइड करो. तो -2 को जब आप हाइड करेंगे तो एलिमेंट आएंगे 1 2 0 -3. कैसे आए? लेट मी एक्सप्लेन. ये -2 है, इसका रो और इसके कॉलम को हाइड करो. तो देखो, जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं वहां पे बचे हुए, उनको यहाँ पे रख देना है, राइट. सिमिलरली लुक एट दिस -3. इस 3 के एलिमेंट क्या आएंगे? 3 के एलिमेंट आएंगे 0 2 -1 -3. तो ऐसे हाइड करके देखने की जरूरत नहीं है बार बार. जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको खुद से समझ में आने लगेगा तो क्या एलिमेंट आएंगे. 0 2 -1 -3 लाइक दिस. सो आई एम नॉट राइटिंग दिस पार्ट हियर बिकॉज इट्स कम्स आउट टू बी 0. वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा. सो -2 इसको एक्सपेंड करो, -3, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर -2 into 0 0. ओके, -3 इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा. -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -2 बिकम +2 और ये आएगा 0, राइट. सो इट्स कम्स आउट टू बी 3 2 जा 6 and it comes out to be 3 2 ja 6. So it becomes 0. So the answer in this case comes out to be 0, right? I hope this thing is clear to you. Now let's move to the next part. Look at this fourth part here. इसमें फोर्थ पार्ट में हम लोग एक्सपेंड करके दिखाते हैं आपको. लेट अस एक्सपेंड इट अलोंग कॉलम 3. तो हम लोग किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं. सो आई एम यूजिंग द different rows and columns in different questions, so then you can better understand that how to expand it along columns and rows in a better way, right? So इसको कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं. एलिमेंट देखिए क्या लिखे हुए हैं, 2 -1 और 0. तो पहले एलिमेंट लिख लीजिए, 2 -2 -1 और यहाँ पे 0. साइन क्या लगेगा? इसका साइन आता है प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस. सो क्या साइन आ रहे हैं? प्लस माइनस प्लस. तो साइन लगाइए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस. ठीक है. अब 2 into 2 डिटरमिनेंट बनाएंगे. यहाँ पे अगेन फिर भी मैं नहीं बनाऊंगा, इसमें बना देता हूं. ठीक है, 0 के साथ तो 0 ही हो जाना है. देखो, -2 को हाइड करो, क्या एलिमेंट आएंगे? अगर आप -2 को हाइड करोगे तो एलिमेंट आएंगे 0 2 3 -5. कैसे आए? देखो, हाइड करके दिखाता हूं. ये था -2 एलिमेंट. इसकी रो को और इसकी कॉलम को हाइड कर दो. क्या एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? 0 2 3 -5, राइट. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. नाउ अब देखो, -1 के एलिमेंट क्या आएंगे? हाइड करो, माइंड में हाइड करो, 3 -5. ठीक है. देखो दिखाता हूं, ये -1 था, इसकी कॉलम और रो को हाइड किया, तो देखो क्या दिखाई दे रहा है, 2 -1 3 -5. सो आई हैव रिटन हियर, राइट. नाउ 0 के साथ क्या आएंगे? 0 के साथ आएंगे एलिमेंट, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो. सो 0 के साथ एलिमेंट आ रहे हैं 2 -1 0 2. इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 ही हो जाना है. तो देखो, 0 मल्टीप्लाइड विथ 5 0, फिर माइनस का साइन, 3 2 जा 6, ये प्लस का 1 आ जाएगा, 5 2 जा 10, फिर माइनस का साइन, 3 1 जा 3, इट बिकम +3. और वो बाद में 0 ही आएगा. इट बिकम मल्टीप्लाइड विथ 0, सो नो नीड टू एक्सपेंड इट. सो इट कम्स आउट टू बी -12 and it's -3, it comes out to be -7. So -12 and -7 is -19. So this is all about this question 5. I hope after explaining these 4 parts, now it's clear to you how to expand a 3 into 3 determinant. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 3 into 3 determinant को कैसे एक्सपेंड करना है. 4 पार्ट मैंने करके दिखाए हैं डिफरेंट रोज और डिफरेंट कॉलम्स को लेके. एंड आई होप नाउ these 4 parts are clear to you all. So now let's move to the next question.
look at this question number 6. In this question number 6 again we have to expand it. So वही दे रखा है वहां पे a is given and we need to find a determinant. So let me explain this part also. So I am going to expand it along row 1. Row 1 के along तो elements क्या है 1 1 minus 2. So let me write the element here 1 1 and minus 2, right? साइन क्या होते हैं? साइन होते हैं रो 1 के जो साइन होते हैं, दिस साइन इज प्लस, दिस साइन इज माइनस एंड दिस साइन इज प्लस. सो पहला होता है प्लस माइनस, प्लस से शुरू होता है, फिर सेकंड होता है माइनस प्लस माइनस, देन थर्ड होता है प्लस माइनस प्लस, लाइक दिस डेटरमिनेंट के साइन होते हैं, राइट? फिर 2 into 2 डेटरमिनेंट बनाना है इसके साथ, 2 into 2 यहाँ पे और यहाँ पे, right? I hope this thing is clear to you, how to make a 2 into 2 determinant. So what we need to fill here? What is the element we need to fill here along with 1? 1, minus 3, 4 and minus 9. Yes, absolutely right. And along with this one? Sir, 2, minus 3, 5 and minus 9. Okay, along these two, minus 2? 2, 1, 5, 4. Okay, right. So like this we need to fill these elements, then you have to expand it. फिर आप इसको expand कर लेंगे. This multiplied with this minus 9 minus 4 3 जा 12, it become plus 12, minus 1 9 2 जा 18 minus 18, then it's 15 plus 15, then minus 2 4 2 जा 8 minus 5 5 1 जा 5. So then expand it. Minus 12 minus 9 is 3. Then minus 18 minus it's become minus 3, become plus 3. 8 minus 5, 3 2 ja 6, minus 6. So it comes out to be 0. So the determinant of this A is 0 in this case. I hope this question is clear to you all. Let me explain this question 7 to you. Look at this question number 7. In this question 7 we need to find out the value of x. X की value हमें find करनी है and this determinant equal to this. So let us expand this determinant. तो 2 को 1 से multiply करें, 2 फिर माइनस का साइन, 5 4 जा 20. So this is the expansion of the determinant. Expand कर दिया मैंने and it's equal to given 2 into multiplied with this x. So it become 2x square minus 6 4 ja 24. So like this, right? So this 20 it become minus 18. This 24 comes on this side. It become 2x square. So I can write 2x square can be written as 24 minus 8. It's 6. So x square is equal to 3, or we can say that x equal to plus minus root 3 is the answer in this case, in the first part. So like this you can solve the second part also. In the second part, these 2 multiplied with 5 become 10. So ये 2 into 2 को कैसे expand करना है? This thing we have discussed already when we were doing the concept. 4 3 जा 12. x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 5x माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 जा 6x, right? So it become minus 2 and it become minus x. So the x in this case is 2, right? So I hope this question is clear to you all. So look at this question number 8. It is also same as the question 7. If I need to explain this question, x multiplied with x square, then put minus sign, 18 2 ja 36 and 18, let us look at this, 18 2 ja 36. Okay, so then this 36 cancel this 36, it becomes 0 and it become x square. This 36 goes on this side, plus 36. So x can be written as root of 36. So x is equal to प्लस माइनस 6. तो रूट ऑफ 36 हम लोग दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस 6 और एक माइनस 6. प्लस 6 भी आ सकता है और माइनस 6 भी आ सकता है, राइट? यू आई होप यू ऑल नो दैट इन क्लास 12. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. अगर आप सी को लगाएंगे तो सी भी माइनस 6 भी करेक्ट नहीं है एंड 6 भी करेक्ट नहीं है. करेक्ट है ये दोनों 6 और माइनस 6, बट दे आर नॉट कंप्लीटली करेक्ट. So completely correct कौन सा ऑप्शन है? प्लस माइनस 6, right? And 0 is not correct. So B is the right option. So this is all about this exercise. I hope this exercise is clear to you now.